So a few questions were remaining from the earlier parts, that is surface area of cylinder. Few questions were left, so let us finish those and then let's do the volume of cylinder today. Finish that part also. Seventh question from exercise 13C. A cylindrical vessel without lid has to be tin coated on both the sides. If the radius of the base is 70 centimeter and its height is 1.4 meter, calculate the cost of tin coating at the rate of rupees 3.50 per 1000 centimeter square. Now see, this question I'm giving as homework, but I'm going to give some hint for this question. So note down the hint. Hint लिख लो please सब लोग. तो यहाँ पे you have been given the radius of the base, that is 70 centimeter, and the height, that is 1.4 meter. Convert this 1.4 meter to centimeter, so it will become 140 centimeter. So you know the radius, you know the height. We have to do tin coating on this cylindrical vessel. Now assuming that the cylindrical vessel is completely closed, so you have to do tin coating on all the areas. So basically you need the total surface area. So you know the formula for total surface area. You can substitute the value of radius and height in that and find it. After finding total surface area, you need to find the cost. But what is the rate they have given? Rupees 3.50 per 1000 centimeter square. So let's say that your total surface area is x centimeter square. Okay, so you have to use unitary method. Unitary method as in, suppose for 1000 centimeter square, the cost of tin plating or tin coating is rupees 3.50. So for x centimeter square, x is a number which you will get, okay, by finding total surface area. That is your total surface area. X will be your number. How much will be the cost? Then you can apply unitary method to find the cost. Basically x into 3.5 upon 1000. If you just do that much, you will get the cost, total cost in rupees. So this much is the hint with explanation which I have given you, and you will do this question as homework. So note down the hint please. I will give 2 minutes for you to note down the hint. It's an easy question. That's why I gave it as a homework, and also I've given hint because only calculation parts, how to do the calculation, that I have shown here. That too about the last part only. Okay, let's move to the next question. Everyone, please keep your cam on. Ansh, keep your cam on. Let's go to the next question. Eighth question. 25 circular plates. Circular plate, okay, you might have seen a circular plate. Circular plate is exactly the shape of cylinder with a very small height. Okay, how many circular plates are there? 25. What is the radius of each of them? 10.5. And thickness means height. Over here the meaning of thickness of circular plate is the height. Suppose if I draw the circular plate over here, it will look like this. The thickness will be like this. So this is the thickness, which is the height basically. So thickness is height over here. Okay, so I know the height and I know the radius. Are placed one above another. How many circular plates are there? 25. So they form a solid cylinder. Find the curved surface area of the cylinder so formed. Very easy.
This question I'm giving as homework. Okay, here what you will do is the radius you will take as 10.5, but the height you will take it as 1.6, that is the thickness of one plate times 25. This will be the height. This is the radius, this is the height. Okay, now you have to find the curved surface area. So what is the formula for CSA? 2 pi RH. You will use that formula and find the CSA. So this is also your homework. Why most of the questions are homework? Because they are very simple, straightforward. I don't want you to solve simple questions for you. At least you can do those by yourself. Because most of the part was explained in last lecture of this cylinder surface area. So we can quickly move on to the volume today and finish that, and maybe move on to cone also. Prerit, please keep your cam on. You guys need to note down the hints which I am giving you. Otherwise, you will find difficulty in solving it later. Anyways, next question. The area of curved surface of cylinder is 4,400 square centimeter, and the circumference of its base is 110. Find the height. Also homework, but the hint, see hint. Curved surface area, CSA. What is the formula? 2 pi RH. And circumference of the base, 2 pi r. What is the curved surface area? 4,400 centimeter square. What is the circumference? 110 centimeter. Can we find the height? Absolutely yes. So how will we find the height? Height will be CSA upon circumference. What is CSA? 2 pi RH. And what is circumference? 2 pi r. Right? If we divide them, we get the height, right? If we divide them, we get the height, right? So सीधा 4,400 upon 110, उससे height मिल जाएगी. Basically 40 centimeter height. Very easy it is. Simple. आपने होमवर्क तो यहाँ पर ही होमवर्क बोल के यहीं पे सॉल्व कर दिया मैंने, सोचो. मुझे सिर्फ हिंट देनी थी, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन था कि हिंट ही सोल्यूशन हो गया. अगर अभी नहीं लिखा है तो होमवर्क में कर देना. अगर अभी लिखा है तो लिख दिया, फिर हो गया, डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. 40 cylindrical pillars, 10th question, of the building are to be cleaned. एक बिल्डिंग में ऐसे सिलिंड्रिकल पिलर्स है. तुमने ऐसे बिल्डिंग देखे हैं सिलिंड्रिकल पिलर्स वाले? एक इंडिया का बहुत फेमस बिल्डिंग है, सिलिंड्रिकल पिलर्स है, उसमें बहुत सारे सिलिंड्रिकल पिलर्स है. तुम्हें पता है कोई ऐसा बिल्डिंग इंडिया में, फेमस बिल्डिंग? डू यू नो? मैं दिखाता हूँ तुम्हें. पार्लियामेंट. हाँ, वो तो मैंने टाइप कर ही दिया. यू सी द बिल्डिंग, दिस इज द बिल्डिंग, हाउ इट लुक्स लाइक. पूरा सर्कुलर है. पूरा सर्कुलर बिल्डिंग है और उसमें ऐसे पिलर्स है सिलिंड्रिकल ऑल अराउंड. ऐसा एक बिल्डिंग यूएसए में भी है, लेकिन इतने सारे सर्कुलर पिलर्स नहीं है. सर एशियाटिक लाइब्रेरी भी है ना एक एग्जांपल. एशियाटिक लाइब्रेरी में सिलिंड्रिकल पिलर्स नहीं.
मतलब आई एम नॉट श्योर, मैंने देखा तो है बहुत बार बाहर से, मैंने इतना नोटिस नहीं किया। लेट्स चेक। एशियाटिक मतलब हॉर्निमान सर्कल पे जो है वो ना, मुंबई में, हाँ, फोर्ट में। गेटवे ऑफ इंडिया के इधर। गेटवे ऑफ इंडिया से थोड़ा दूर है। एशियाटिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। ओह यस इट हैज, यू आर राइट। मेरे को लगा ये रेक्टेंगुलर है बट सिलिंड्रिकल है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो और एक बिल्डिंग विद सिलिंड्रिकल पिलर्स जो मुंबई में है, विच इज वेरी फेमस। पिछले डेकेड में या उससे पिछले डेकेड में यहाँ पे मूवीज के शूटिंग होते थे बहुत ज्यादा, और अब यहाँ पे सिर्फ इंस्टा की रील बनती। ये स्टेप्स दिख रहे हैं तुम्हें? सो ये मुंबई में है, जाओ कभी देखो। सर ये शायद वो धूम मूवी में भी था शायद। कौन सी मूवी में? धूम 3 या तो ऐसा किसी में तो था। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है। बहुत सारे मूवीज में इसका शूटिंग लिया हुआ है। एनीवेज, सो दीज आर द बिल्डिंग्स विद सम सिलिंड्रिकल पिलर्स। तो यू नो नाउ के सिलिंड्रिकल पिलर्स वाले बिल्डिंग होते हैं, बड़े बड़े सिलिंड्रिकल पिलर्स। ठीक है, सो ऐसे ही सिलिंड्रिकल पिलर्स वाला कोई एक बिल्डिंग था, जस्ट मोमेंट। उसको क्लीन करना है, पिलर्स को क्लीन करना है। और कितने पिलर्स है? 40। और एक पिलर का डायमीटर है 0.5 मीटर, हाफ मीटर, और उसकी हाइट दी है 4 मीटर, मतलब रेडियस और हाइट है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग देम एट द रेट ऑफ 2.5 पर मीटर स्क्वायर। क्या करेंगे? क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, या वॉल्यूम निकालेंगे? तीनों में से एक। सर टोटल। नहीं बेटा, कर्व सरफेस। टोटल हाँ कैसे सर। निकालेंगे? कर्व सरफेस निकालेंगे ना यहाँ पे। ये देखो ना, ये पिलर है, उसका सिर्फ कर्व सरफेस हमें क्लीन करना है। नीचे बेस और ऊपर का जो टॉप है वो तो बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड है, वहां तो नीचे गैप नहीं है कि हम उसको क्लीन करें। यू अंडरस्टैंड नाउ? यस सर। सो वी हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2πr(h), 2πr(h). right? So we will use the formula 2πr(h), find the curved surface area, और उसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि देर आर 40 पिलर्स टू बी क्लीन, नॉट वन। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 से। क्यों? क्योंकि रेट पर मीटर स्क्वायर क्लीनिंग का कितना है? 2.50। तो ये सब करने से तुम्हें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ये भी तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद है 11th क्वेश्चन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिंकिंग ट्यूब वेल 280 मीटर डीप हैविंग डायमीटर 3 मीटर। देखो तुम्हें डीप मतलब डेप्थ दी है, वेल की डेप्थ, यानी वेल की हाइट। डेप्थ मतलब उसकी हाइट होती है 280 मीटर, और डायमीटर दिया है 3 मीटर, मतलब रेडियस होगी 1.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिंकिंग ट्यूब वेल। सिंकिंग मतलब मेकिंग, उसको अंदर डिग करके बनाना है, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? देखो अगर मुझे सिंकिंग ट्यूब वेल और उसका रेट दिया है ₹3.60 पर मीटर स्क्वायर, मतलब वो जो उसका एरिया है ना अंदर का, इनर कर्व सरफेस एरिया, उससे मुझे ये रेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यू हैव टू फाइंड इनर CSA। इनर CSA विल बी 2πr(h), सेम रेडियस और सेम हाइट लोगे तुम, और फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3.60 से। तो यू विल फाइंड द कॉस्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। हो जाएगा ना इजीली? होमवर्क नहीं यस दिया है सर। ज्यादातर, बट इजी क्वेश्चन है इसलिए होमवर्क में दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेल इज 4.5 मीटर। डायमीटर मतलब रेडियस कितनी होगी? 2.25 मीटर, डायमीटर का हाफ। एंड द डेप्थ ऑफ द वेल इज 14 मीटर, मतलब हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द इनर कर्व सरफेस।
वही चीज है, वापस अंदर की कर्व सरफेस को सीमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इनर सी ए से निकालेंगे। इनर सी ए से का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH, और उससे हम लोग 12.50 मल्टीप्लाई कर देंगे रेट को, तो हमें कॉस्ट मिल जाएगी। ये भी होमवर्क, right? So there is no much challenge in solving the remaining questions from exercise 13C, and this part is completed. Within 15 minutes we have finished this part. So we also have to multiply or nothing at the last part. Nothing, just the rate. Okay, sir. Just the rate. Why? Because there is only one well, na? Meaning 2πRH into 12, na? Into the rate, that is 12.50. 12.50. Okay. I've already Yes. given this PDF in your group. I've already given this PDF, तो तुम्हें बाकी के क्वेश्चन करने के लिए वही PDF से करना है, ठीक है? बट इसको जब तुम फाइल बनाओगे तो उसमें नेमिंग करना ऊपर ठीक से, कि दिस इज 13C, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 12 तक। क्वेश्चन नंबर नेमिंग प्रॉपरली होना चाहिए, ऊपर एक्सरसाइज डेट भी डालना है। बहुत लोग ये सब नहीं करते हैं होमवर्क में। Anyways, we are on the final part of cylinder. Final part of cylinder मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाले पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, दैट इज πr²h। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, लेट्स सी तुम लोग को आता है कि नहीं। सपोज वी हैव अ हॉलो सिलेंडर। मैंने हॉलो सिलेंडर के बारे में पहले बताया हुआ है, ठीक है? वी हैव अ हॉलो सिलेंडर लाइक अ पाइप। पाइप जैसा होता है ना, ऐसा हॉलो सिलेंडर है, और अंदर भी ऐसा हॉलो है। ठीक है? सपोज मुझे इसका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? क्या होगा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ मटेरियल? सर इनर वॉल्यूम माइनस आउटर वॉल्यूम। उल्टा बोला तुमने। आउटर वॉल्यूम। एक्चुअली इट इज आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम के लिए आउटर रेडियस लगेगी, मतलब पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। हाइट वही होगी सेम दोनों की, और इनर वॉल्यूम इज पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। इसमें पाई और एच बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है जो थोड़ा अलग है, बाकी सबके लिए एक ही फॉर्मूला है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। सिर्फ हॉलो सिलेंडर के लिए वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अभी पूछते हैं तो फॉर्मूला अलग है। लेकिन अगर इसमें पूछते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इनसाइड द इनर सिलेंडर, ये जो अंदर वाला सिलेंडर है उसके अंदर कितनी जगह है, तो हाउ यू विल फाइंड द अमाउंट ऑफ स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द इनर सिलेंडर कैसे ढूंढोगे? हाउ विल यू फाइंड? Sir, inertia se. Yes, We can also write pi rho square h na for outer volume. you can write capital and small. Don't write RO, RI, because you can write, but we are following one system, follow one system. तो इनर वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ स्पेस कंटेन्ड इन द इनर सिलेंडर विल बी इनर वॉल्यूम। इनर वॉल्यूम इज पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक क्वेश्चन होमवर्क में सीधा दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। हाइट दी है, रेडियस दी है, वॉल्यूम पूछा है, मतलब ये होमवर्क है तुम्हारा। फर्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। सेकेंड क्वेश्चन भी होमवर्क है, क्योंकि डायमीटर दिया है, डायमीटर से रेडियस निकाल लोगे तुम, और हाइट दी है, फिर से तुम्हें वॉल्यूम निकालना है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग अभी करने वाले हैं।
So we are going to do the third question now. Please focus here. Third question और note भी कर लेना please. The curved surface area of cylinder is 4400 centimeter square. CSA कितना है? 4400 centimeter square. मेरे साथ साथ नोट कर लो. And the circumference of base, पहले ही किया था ये क्वेश्चन, 110 सेंटीमीटर. Find the height and the volume. हमें हाइट ढूंढनी है और वॉल्यूम भी ढूंढना है. ठीक है, हाइट ढूंढने के लिए हमें पता है क्या करना था. देखो CSA का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई RH. सर्कमफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई R. Therefore हाइट क्या होगा? CSA अपॉन सर्कमफरेंस, दैट इज 4400 अपॉन 110. कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर. हाइट आ गई. अब सर्कमफरेंस से रेडियस भी निकाल लो. सर्कमफरेंस इज 110 which is equal to 2 pi r. So 110 divide by 2 into 7 by 22, सही है ना? 7 by 22 हो जाएगा, पाई ये साइड आके, is equal to r. 22 5 is 110. So इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. 5 7 is 35 divided by 2. So रेडियस को 35 by 2 ही रखते हैं हम लोग. ठीक है, सेंटीमीटर. पॉइंट में मत लाओ अभी. तो ये आ गया तुम्हारा हाइट और रेडियस दोनों. हाइट की जरूरत है हमें, रेडियस की भी जरूरत है हमें, दोनों की जरूरत है. वॉल्यूम निकालना है ना हमको. सो वॉल्यूम कितना होगा? फॉर्मूला पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच. पाई इज 22 by 7. आर स्क्वायर इज 35 by 2 द होल स्क्वायर इंटू हाइट विच इज 40. प्लीज फाइंड इट आउट. सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आंसर. Please find out. You all have 2 minutes to find this answer. Come on. Sir, 2200. Okay, we have got one answer, 2200. Let's see who else can get what answer. It's not necessary your answer should be matching with the answer which Vedant gave. If you get a different answer, please let me know. We will check later. One answer is 2200. Let's see what is the second answer. Sir, I got 38,500. Okay, Sneha also got 38,500. So मतलब Vedant Yes, sir. did not. 38,500. Sir, वो स्क्वायर है. 35 upon 2 the whole square ना, स्क्वायर नहीं देखा. तूने नहीं देखा स्क्वायर? ऐसे ही कट कर दिया. उसका नॉर्मल आंसर है, स्क्वायर ने ये नहीं किया. किसने नहीं किया ये? तूने? वेदांत? 38,500. Okay, let's check. Correct. 38,500 is the correct answer. Yes sir, मेरा भी आया है. Good, very nice. Let's go to the next question. So I hope everyone got the correct answer. Let's go to the next question. Sum of the height and radius of the base of a solid cylinder is 37 meter. I have to do this for you. Sum of the height and radius मतलब h plus r कितना दिया है? 37 मीटर. h plus r की वैल्यू दी है 37 मीटर. If the total surface area is 1628, PSA कितना है? 1628 मीटर स्क्वायर. Find the volume. Wow. Sum of the height and radius दिया है और total surface area दिया है और वॉल्यूम पूछा है. ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसमें. पहले तो TSA का फॉर्मूला ही लगाऊंगा मैं. TSA का फॉर्मूला क्या है? 2 pi r ब्रैकेट r plus h. राइट. अब देखो इससे क्या होता है.
TSA है 1628 which is equal to 2 pi r times r plus h. r plus h की वैल्यू है 37. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 2 pi r की वैल्यू निकाल लूंगा. आई एम सॉरी, 2 pi r की वैल्यू क्यों निकाल लूं, मैं r की वैल्यू निकाल लूं ना सीधी, राइट. सो 1628 डिवाइड बाय 2 multiplied by 7 upon 22 times 1 upon 37 is equal to r. Can anyone please find radius for me? मीटर में है. इसको सिंप्लीफाई करो जो मैंने इक्वेशन बनाया है and find the radius for me. This is the fourth question which I am doing for you, okay? Which we are doing in the class. जब तुम होमवर्क सबमिट करोगे ना, यू विल ऑल्सो इंक्लूड द क्लास वर्क देयर. तो क्लास वर्क पहले लिखना, फिर होमवर्क लिखना, पूरी एक्सरसाइज एक साथ मिलनी चाहिए मुझे, so that I know that you have done the whole exercise. That is the whole point. Sir, 7 meters. I can't hear you. Your voice was very low. 7. 7, you are asking me or telling me? Sir, 7 है. Okay, 2-3 लोग 7 बोल रहे हैं. Who else got 7? Sir, 7. Okay, many people are getting 7 as the answer. Sir, 7. Okay, great. Sure. Then I will take it for your word that 7 is the correct answer. You all know calculations. Good, very nice. So this is 7 meter radius. अब देखो मैं height निकाल दूंगा इससे. I know that h plus r is 7 meter. ठीक है? Sorry, h plus r is 37 meter. So h plus 7 is equal to 37, right? r 7 है. So h हो जाएगा 37 minus 7, which is 30 meter. So basically what I have done is I have found the radius and I have found the height to be 30. So अगर मेरे पास रेडियस और हाइट है तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ. वॉल्यूम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट. सो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम विल बी, oh very good, Sneha has already got it, pi r square h. ये है फॉर्मूला वॉल्यूम का, 22/7 टाइम्स रेडियस which is 7 square times height which is 30. ठीक है, ये कट हो जाएगा. So 22 times 210. फाइंड आउट. सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आना चाहिए, सॉरी मीटर क्यूब में आंसर आना चाहिए क्योंकि सब कुछ मीटर में था. वॉल्यूम विल बी इन मीटर क्यूब. यूनिट्स बहुत जरूरी है, यूनिट्स नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे तुम्हारे. Sir, 4,620 meter cube. Yes, sir. Sir, 4,620. वेरी गुड, 4620. आंसर मैचेस वेरी वेल. बहुत अच्छे. Good. So we are ready to move to the next question. This was fourth question done in the classroom. Let's talk about the fifth question. क्या है ये? The ratio between curved surface area and total surface area is given. Okay. And you have to find the volume. If its total surface area is 616. अच्छा. Okay, let's try this. Fifth question भी हम लोग क्लासरूम में कर रहे हैं. So ये क्या बोल रहे हैं लोग? Ratio between CSA and TSA. मतलब CSA upon TSA is equal to 1/2. TSA की वैल्यू दी है 616. TSA कितना है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर मैं ये वैल्यू रेशियो में डालूं, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली. अगर ये वैल्यू रेशियो में डालूंगा मैं, so I'll get CSA upon 616 as 1/2. So therefore CSA कितना हो जाएगा? 313 सेंटीमीटर स्क्वायर. You see that?
CSA will be equal to 313 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CSA मिल गया, TSA मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? आई हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? हमारे पास CSA TSA दोनों का रेशियो है और दोनों की वैल्यू है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखो थोड़ा सा नोट करो इसको। CSA का फॉर्मूला है 2 पाई RH और TSA सिलेंडर का जो फॉर्मूला है दैट इज 2 पाई R ब्रैकेट R प्लस H। यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें मिल जाएगी। क्या मिलेगा? देखो इससे, अगर मैं TSA अपॉन CSA लिखता हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 पाई R ब्रैकेट R प्लस H अपॉन 2 पाई RH। सही है? यस सर। लिख सकता हूं ना ऐसे। अब यहां पे ये 2 पाई R और ये 2 पाई R को मैं कट कर दूंगा और क्या बचेगा? TSA अपॉन CSA। देखो CSA और TSA का जो रेशियो है वो है 1/2। So can anyone tell me what will be the ratio of TSA upon CSA? 2/1, by 1. which is R plus H by H. Please note this. This is very important. This is the most important step in the whole sum. 2/1 is equal to R plus H by H. अच्छा, अब देखो ध्यान से, 2/1 is equal to R by H plus H by H. This is also very important step. एक तो देखो ये जो पूरा मैंने लिखा है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, ये तीनों स्टेप पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया ये तो तुम ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है? सो व्हाट डिड आई फाइंड? आई एम नॉट फाउंड एनीथिंग टिल नाउ। अब देखो ये हाइट दोनों कट जाएगी, यहाँ पे आएगा ऊपर 1। सो 2/1 minus 1 is equal to R by H. So 2/1 means 2. 2 minus 1 is 1 is equal to R by H. So therefore R is equal to H. क्या प्रूव किया मैंने? रेडियस और हाइट इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है। रेडियस, जितना रेडियस का मेजर है उतनी ही हाइट है। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, जहां पे रेडियस और हाइट इक्वल प्रूव हो गए। अब मुझे एटलीस्ट रेडियस या तो हाइट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो मैं क्या करूंगा उसके बिना? उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ CSA because I know what is CSA. CSA is 313 सेंटीमीटर स्क्वायर, यू सी। सो मैं CSA का फॉर्मूला यूज करूंगा। विल यूज द फॉर्मूला फॉर CSA which is 2 pi RH, और इसमें क्या करूंगा मैं? 313 लिखूंगा यहाँ पे, 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू H की जगह पे मैं क्या लिखूंगा पता है? R इंटू R, क्योंकि R और H तो इक्वल है ना। R और H इक्वल है तो H की जगह R लिख सकता हूं मैं, R की जगह H भी लिख सकता हूं। मैंने R इंटू R लिखा। इसमें किसी को डाउट है? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो आगे सम क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाओ। सो 313 टाइम्स 7/22 टाइम्स 1/2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। Now you have to solve this and find R square, because if you ask me, I don't know any way out. कैसे निकलेगा ये? 616 तो आपने 22 कैंसिल किया है क्या? नहीं किया। कहाँ किया कैंसिल? तो 7/22 लिखा कैंसिल। कैंसिल नहीं किया रे, 22 एज इट इज है। फिर से लिखता हूँ, ठीक है? कैंसिल नहीं किया है। 22 के टेबल में 313 आता भी नहीं है। So I don't know how is this going to work. Pi R square H. I'm not sure. वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 616 का हाफ तो 313 ही होता है ना।
नहीं यार, एक मिनट एक गलती की हमने। 616 का हाफ 308 होता है, isn't it? Big mistake. Yes, sir. Caught. I'm extremely sorry for this. Please correct it. CSA will be half of TSA will be 308 centimeter square. 313 क्यों लिख दिया मैंने? 2 से डिवाइड करना था तो मैंने क्या कर दिया पता नहीं। 308 आएगा यहाँ पे। I'm sorry. अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ यही स्टेप में प्रॉब्लम आया। 308 हाँ, अब ये कटेगा, अब ये कट होगा, आराम से कट होगा। पहले 2 से कट कर लेते हैं। 2 154 राइट, एंड 22 7 154, अब कट गया। therefore r square is equal to 7 square and therefore r is equal to 7 centimeter and therefore h is also equal to 7 centimeter। क्यों h और r इक्वल है? सिंस r is equal to h, ये तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया था, समझा? 313 ने अपने को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था, मेरी गलती थी। एनीवेज, सो r मिल गया मुझे 7 सेंटीमीटर, h मिल गया। अब मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। वॉल्यूम इज पाई r स्क्वायर h, 22/7 times r square which is 7 times 7 times h which is also 7। ठीक है, 7 7 कट, that is 22 times 49। प्लीज फाइंड इट आउट सेंटीमीटर क्यूब में, फाइंड आउट प्लीज। Prerit, can you keep your cam on? Why does the cam go off every other time? So 1078. Okay, perfect. 1078 centimeter Sir, cube. Sir, same. 1078. So, Perfect. So I hope you understood this question. So हमने 3 क्वेश्चन back to back किए because all the 3 were different, all the 3 were challenging in their own way. So good that we solved them here so that तुम्हारे लिए उतना प्रेशर कम हो जाएगा। But I hope you remember them and the method with which we have solved. ठीक है, let's go ahead and see what kind of questions we have ahead. Okay, 2 सिलेंडर की रेडियस का रेशियो दिया है 2:3 एंड उनकी हाइट्स का रेशियो दिया है 5:3। उनके वॉल्यूम, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स एंड द रेशियो ऑफ देयर CSA। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे देखो, लेट द 2 cylinders A and B have the ratios of their radii. Let the 2 cylinders A and B have the ratios of their radii equal to RA is to RB which is 2:3 and लिख लो इसको, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। Let the 2 cylinders A and B have the ratios of their radii equal to RA is to RB which is 2:3 and ratio of their heights equal to HA is to HB which is 5:3, है ना? रेडियाई को RA RB ले लिया, हाइट को HA HB ले लिया। Now what we have to find?
We have to calculate the ratio of their volumes and the ratio of their CSAs. ठीक है. Therefore, VA is to VB. कैसे लिखेंगे इसको? VA is pi into RA square into HA, right? Pi into RA square upon HA upon pi into RB square into HB. ये हो गया रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. देखो सीधा पाई पाई कट जाएगा. और एक चीज थोड़ा मॉडिफिकेशन करके लिखता हूं. आर ए अपॉन आर बी को मैं अलग से लिख के द होल स्क्वायर लिखता हूं टाइम्स एच ए अपॉन एच बी. तो आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू तो है हमारे पास 2/3. सो ये हो जाएगा 2/3 द होल स्क्वायर टाइम्स एच ए अपॉन एच बी की वैल्यू भी है हमारे पास, दैट इज 5/3. करेक्ट? ओके. अब देखो 2/3 द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4/9 टाइम्स 5/3. सो दैट इज 20/27. हो गया, मिल गया आंसर. द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 20/27. दूसरा जो रेशियो ढूंढना है दैट इज ऑफ देयर सरफेस एरियाज. टोटल और कर्व सरफेस एरिया. क्या बोला है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेसेस. करेक्ट. सो हमें ढूंढना है CSA A is to CSA B. That is 2 pi RA HA upon 2 pi RB HB. More easy. 2 सीधा कट, pi भी कट. RA upon RB is 2/3 and HA upon HB is 5/3. That is 10/9. 10/9. This is the ratio of their curved surfaces. Very easy question, but it was new, it was different, that's why we did it. Yes, sir, I got the answer. Yeah, I also got the answer. Dheer, keep your cam on. Zeba, keep your cam on. लिख लिया सबने? चलो, लेट्स गो अहेड. 6th क्वेश्चन हमने कर लिया है. मुझे लगता है सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, हमें करने पड़ेंगे काफी. होमवर्क में होंगे क्वेश्चन, बट लेट्स सी. द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट इज 2:3. अच्छा, तो मतलब रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है R/H 2:3. ओके. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1617. वॉल्यूम दिया है और तुम्हें टीए से पूछा है. देखो इसमें हिंट दे रहा हूं, ये होमवर्क है क्वेश्चन. लेट मी जस्ट मार्क इट ओवर हियर फॉर योर नॉलेज. 7th क्वेश्चन इज द होमवर्क. नेक्स्ट होमवर्क. अच्छा, इसमें करना क्या है? तुम्हें R और H का रेशियो दिया है. तुम एक काम करो, लेट रेडियस इज इक्वल टू 2x एंड हाइट इज इक्वल टू 3x ले लो. ठीक है, फर्स्ट स्टेप. फिर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम की वैल्यू दी है 1617 इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर इंटू एच मतलब 3x. इसको सॉल्व करके x निकाल लो. x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो r में और h में, तो तुम्हें रेडियस और हाइट दोनों मिल जाएंगे. रेडियस और हाइट मिलने के बाद यू कैन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. व्हाट एल्स यू वांट फॉर टोटल सरफेस एरिया? नथिंग एल्स. ठीक है. सो प्लीज इतना हिंट लिख लो चाहिए. दिस इज योर होमवर्क, दिस क्वेश्चन. गिव यू 1 minute फॉर राइटिंग द हिंट. इफ यू डोंट वांट टू राइट हिंट, अगर तुम्हें समझ गया मतलब क्रैक कर लिया तुमने कैसे करना है, तो कोई बात नहीं, तुम खुद करो. लेकिन इफ यू आर, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, इफ यू हैव दैट टाइनी अमाउंट ऑफ डाउट
कि कैसे करना है इसको, तो प्लीज हिंट लिख लेना। Okay, let's go ahead. Okay, the next question is also your homework. क्यों, मैं बताता हूं तुम्हें क्या पूछा है। देखो, the curved surface area of cylinder is 264 meter square and volume is 924 meter cube. Find the diameter and height. कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों दे दिए। अब ये दोनों को सॉल्व करने के लिए तुम्हें इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिर्फ हिंट दे रहा हूं, लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो डिवाइड द वॉल्यूम बाय सी एस ए। वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर एच और सी एस ए का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। इसमें से क्या क्या कटेगा देखो, एच एच कटेगा, आर कटेगा और आर का स्क्वायर कटेगा, पाई कटेगा और पाई कटेगा। सो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ऊपर सिर्फ आर और नीचे सिर्फ 2। सो बेसिकली अगर मेरे पास वॉल्यूम की वैल्यू है 924 और कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू है 264, तो इनको सिंप्लीफाई करके मैं रेडियस निकाल सकता हूं। और सिंस मेरे पास रेडियस है और वॉल्यूम या कर्व सरफेस एरिया किसी एक की भी वैल्यू लेके मैं हाइट भी निकाल सकता हूँ। और रेडियस मिल गया तो डायमीटर मिल जाएगा, हाइट भी मिल जाएगी। दिस इज द हिंट। सो वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया को डिवाइड करके तुम्हारा काम हो जाएगा। ये भी हिंट है, ये हमने पहले ऐसा किया हुआ था एक क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इसको होमवर्क में दिया है। आई एम रिमूविंग इट, ओके, बिकॉज आई थिंक इतना अच्छा नहीं है कि इतनी हिंट्स के साथ तुम करो क्वेश्चन, थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाना चाहिए। सो इफ यू लिसन टू मी क्लियरली, बहुत इजी है क्वेश्चन। ओके, 9th वाला यहाँ पे करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। फाइंड द वेट ऑफ अ लेड पाइप 3.5 मीटर लॉन्ग। हाइट दी है, पाइप की लेंथ मतलब हाइट ही होती है, याद रखना, 3.5 मीटर। If the external diameter of the pipe is 2.4 centimeter, external diameter is capital R, 2.4 centimeter, and the thickness of lead is 2 mm. Thickness is external radius minus internal radius, 2 mm. 2 mm का मतलब होता है 0.2 सेंटीमीटर। देखो, हाइट मीटर में है, रेडियस और थिकनेस सेंटीमीटर में। मैंने 2 mm को सीधा सेंटीमीटर में लिखा है बिकॉज सारे अलग अलग यूनिट से हम काम नहीं कर सकते। तो एक काम करो, हाइट को भी तुम कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में। सो इनटू 100 करोगे तो कितना आएगा, 350 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आई हैव कन्वर्टेड हाइट, रेडियस एंड थिकनेस इनटू सेंटीमीटर। नाउ सी, आउटर रेडियस 2.4 है और थिकनेस 0.2 है, तो मैं इनर रेडियस निकाल सकता हूं। इनर रेडियस विल बी आउटर रेडियस माइनस थिकनेस। ठीक है, ये है थिकनेस। सो आउटर रेडियस कितना है, 2.4 माइनस इनर माइनस थिकनेस कितना हो जाएगा, 0.2। थिकनेस कितना, सॉरी, इनर रेडियस कितना है, 2.2 सेंटीमीटर। आई एम सॉरी। सो आई गॉट, सी व्हाट आई गॉट, अगेन आई एम टेलिंग यू, सी व्हाट आई गॉट। आई गॉट द हाइट ऑफ द cylindrical pipe, I got the outer radius, I got the inner radius। अच्छा, इसमें और एक चीज बताया उन्होंने, 1 cubic centimeter ऑफ लेड वेज 10 grams, और इसका वेट निकालना है मुझे। पहले तो इसका मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो यू विल हेल्प मी टू फाइंड द वॉल्यूम। नाउ दिस इज अ हॉलो पाइप, इट्स अ हॉलो पाइप। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें पहले ही पूछा था व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल फॉर हॉलो पाइप, हॉलो सिलेंडर। उसका फॉर्मूला हमने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, outer volume minus Yeah. inner volume. So we are going to use this formula over here to find the volume of the hollow lead pipe. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ volume of hollow
lead pipe is equal to pi into h bracket r square minus r square. Pi is 22 by 7, height is 350 times capital R square which is 2.4 का square minus small r square which is 2.2 का square. देखो इसको सॉल्व करने का एक इजी तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें. पहले 7 और 350 को कट करो, 50 आ गया, 22 5 110 और एक 0 आएगा. यहाँ पे इसको तुम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर सकते हो विच इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी. ठीक है, सो 1100 टाइम्स 4.6 टाइम्स, एक मिनट, टाइम्स 0.2. ठीक है, इसको सॉल्व करो, वॉल्यूम निकालो, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, निकालो. ओके, डिफरेंट पीपल आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स. 9241012 ये दो आंसर आ रहे हैं. स्नेहा 253 भी बोल रही है. आई डोंट नो व्हाट इज. सर यू आर ऑन म्यूट. सर म्यूट हो. ओह सॉरी, ओह सॉरी. अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं. कुछ लोग बोल रहे हैं 9241012. सर 1012. Yes sir, 1012. 1012 पे आई थिंक काफी लोग बोल रहे हैं कि करेक्ट है. सो लेट मी चेक, क्योंकि some people are not agreeing. So ये दो जीरो इसके डेसिमल हटा सकते हैं ना हम लोग. तो 11 इंटू 46 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू, सॉरी 22 इंटू 46. 22 इंटू 46. अब तो इजी है. 012. पक्का ना 1012? Yes sir, 1012. सेंटीमीटर क्यूब. स्नेहा यस सर 1012 सही है ना? क्यों? 1012 ही है आंसर. स्नेहा मुझे कोई और ही आंसर मिला है. क्यों? 46 इंटू 22 कुछ और नहीं हो सकता है. कैसे आया? सर मैंने 1100 की जगह 110 ले लिया. ओह वेरी नाइस. ओके 1012 अभी लेके चलते हैं हम लोग. ठीक है, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लेड पाइप. हमें ढूंढना क्या है? क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो. क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वेट ऑफ द लेड पाइप. वेट ढूंढना है. हमारे पास क्या है पता है? एक इंफॉर्मेशन है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वेज 10 ग्राम्स. मतलब हमें यूनिटरी मेथड करनी पड़ेगी. ठीक है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वेज 10 ग्राम्स. तो यूनिटरी मेथड में यहां पे लिखता हूं. इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वेज 10 ग्राम्स, ये है तुम्हारा वॉल्यूम और ये है तुम्हारा वेट, देन 1012 centimeter cube will weigh how much? That is 1012 times 10 upon 1, that is 10120 grams. इसको ग्राम Yes, को sir. किलोग्राम में कर दो. ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000, that is 10.120 kg. 10.12 kg. 10.12 kg. ये आंसर आना Yes चाहिए. sir, correct answer sir. ओके, करेक्ट है कि नहीं हमको चेक करना पड़ेगा एक बार. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. गलत है भाई. 4840 ग्राम्स आ रहा है. 4840 ये कहाँ से आ रहा है यार? 9th क्वेश्चन नंबर 9 था ना ये? हाँ, 4840 ग्राम्स आ रहा है. पाई इंटू एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बिल्कुल सही है. 4.6 भी सही है, 0.2 भी सही है, 46 इंटू 22 भी सही है. Yes sir, 10.2 आ रहा है. 10.2 या 10.12? 10.12, 2 नहीं.
10.12 kg आ रहा है। सर कितना ग्राम आया उनका आंसर सर? सर बुक में 9420 ग्राम है क्या? नहीं 46 समथिंग। नहीं सही है यार अपना, सब कुछ ही तो करेक्ट है। एक बार चेक करें फिर से क्या है। 94840 4840 फिर से चेक करते हैं। 3.5 मीटर इसकी हाइट है। एक्सटर्नल डायामीटर यार, शिट, इट इज डायामीटर, इट इज नॉट रेडियस। दिस इज क्रेजी मैन, आई डिडंट इवन रीड इट प्रॉपर्ली। डायमीटर 2.4 है और थिकनेस दी है 2 mm 0.2। ओ सर यानी हम लोग का पूरा ये सोल्यूशन रॉन्ग निकला। पूरा सोल्यूशन रॉन्ग। वेदांत बोलता है क्या सर, क्या क्या करूं मैं बताओ। फिर से करते हैं ना। 2.4 डायमीटर है, ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ। 2.4 का हाफ मतलब 1.2 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस। ठीक है, 1.2 रेडियस है, थिकनेस भी है हमारे पास, तो इनर रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। 1.2 माइनस 0.2, 1.2 माइनस 0.2। प्रेरित बोल रहे केटीएम। केटीएम मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? खत्म। खत्म मतलब खत्म क्या होता है? टाटा बाय बाय, खत्म टाटा बाय बाय। मीम बना रहे क्या? हाँ, खत्म टाटा बाय बाय मतलब व्हाट डू यू मीन बाय? ठीक है ना, कर देंगे ना यहाँ पे। रुक जाए, सब करने की जरूरत नहीं है, इसको सर समझो। आप तो रफ कर दोगे, हमें तो पूरा लिखना पड़ेगा वापस। तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। कैपिटल आर स्क्वायर 1.2 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज 1 स्क्वायर। और ये तो छोटा है यार, हो जाएगा। 1.2 का स्क्वायर कितना है? 1.2 का स्क्वायर है 1.44 माइनस 1 मतलब 0.44। अरे ये तो बहुत इजी निकला यार। सो 11 टाइम्स 44, शिट, इट्स वेरी इजी। 121 टाइम्स 4 121 टाइम्स 484। यस आ गया, वाओ आ गया। 484 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये है तुम्हारा वॉल्यूम। सॉरी फॉर द मिस्टेक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, फिर यूनिटरी मेथड में हम लोग सिर्फ ये वॉल्यूम को हटा देंगे, ठीक है। सो 484 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा? दैट इज 4840 ग्राम्स, which is 4.84 kg. This is the weight. So sorry for the mistake, guys. हम लोग का उधर ही पहले ही निकल गया था ना आंसर, यूनिटी वॉल्यूम के पहले। हमारा आंसर, हमारा मेथड करेक्ट था, सिर्फ वो जो रेडियस हमने गलत, हमने डायमीटर को रेडियस ले लिया। बाकी सब मेथड पूरी करेक्ट है। या वेदांत, या वेदांत तो अचानक ऐसे गुड बॉय कैसे बन गया यार? पूरा होमवर्क टाइम पे सबमिट। मेरे को लगा इस वीक भी तू नहीं कर पाएगा। तो व्हाट हैज मोटिवेटेड यू? हाँ, what has motivated you? iPhone, what are you means? मैं समझा नहीं। आईफोन मिलेगा अगर होमवर्क करेगा तो, ऐसा क्या बोल रहे हो? iPhone 13 तो
I think you didn't get my question. I asked what has motivated you. How come iPhone can motivate people? It's not even a person. Sir, can you repeat what you were saying? My Must have made some net deal with his disconnected. parents. Yeah, sure. Even I feel he's a deal maker. Okay. अच्छा, ओके, डील है, ठीक है, कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 10. क्या करें, होमवर्क करें, यहाँ पे करें, देखते हैं. हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल? 14 मीटर डीप एंड 4 मीटर इन डायमीटर. ऑफ कोर्स वी नो. वॉल्यूम निकालना है, होमवर्क. ठीक है, डेप्थ दी है और डायमीटर दिया है. डायमीटर से रेडियस निकालना. डेप्थ विल बी हाइट एंड द क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वेल डग. अच्छा, व्हाट विल इट कॉस्ट टू प्लास्टर इट्स इनर सरफेस? ओ, अपने को इनर सरफेस को प्लास्टर करना है. व्हाट शुड वी फाइंड आउट? What should we find out if we want to plaster the inner surface? Inner curved surface area, inner CSA, 2 pi RH. Inner CSA तुम ढूंढो और फिर उसको 2.50 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें कॉस्ट आ जाएगी प्लास्टरिंग की. ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क. वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. लेट्स गो टू द सेकेंड स्लैब, स्लैब 2. वाओ, बहुत सारे क्वेश्चन निकले यार इसमें. Let's go to the next slab. क्या है इसमें? A powder tin. Sorry, somebody was saying something. Okay. A powder tin has a square base with side 12 centimeter and height 17.5 centimeter. ये होमवर्क है तुम्हारा. प्लीज इसको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, और कुछ लिखना नहीं है. एक पाउडर का टिन है जिसका शेप है ऐसा स्क्वेरिश. ठीक है, इसकी हाइट दी है तुम्हें 17.5 और इसका जो बेस है वो स्क्वायर बेस है. उसकी साइड दी है 12 और 12, मतलब LBH पता है तुम्हें. ठीक है. अच्छा, दूसरा जो टिन है वो सिलिंड्रिकल है. दूसरा टिन है सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल टिन है. उसकी भी हाइट दी है. डायमीटर ऑफ बेस दिया है 12, मतलब इसकी रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और हाइट दी है 17.5. ठीक है. बोला है, पूछा है विच हैज मोर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच. कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम. वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम निकालना है तुम्हें और दोनों का वॉल्यूम में से किसका ज्यादा है वो बताना है. और बाय हाउ मच इट इज मोर, मतलब सब्ट्रैक्ट करके बताना. ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. इट इज होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 11 इज होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 12. If 1 centimeter cube of cast iron weighs 21 grams, find the waste of a cast iron pipe of length 1 meter with a bore of 3 centimeter. Wow, you know what is bore? This is also your homework, by the way, but I'll give you the meaning of bore. Bore का मतलब होता है होल. बोर का मीनिंग है ये होल, मतलब ये हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप है. ठीक है, हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप है जिसमें जो हाइट है, लेंथ दी है 1 मीटर, मतलब हाइट हो जाएगी 1 मीटर एंड बोर ऑफ 3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो अंदर का होल है उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है. बोर ऑफ 3 सेंटीमीटर मतलब अंदर का रेडियस हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ द मेटल इज 1 सेंटीमीटर. थिकनेस पता है तुम्हें, थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, मतलब तुम आउटर रेडियस भी निकाल सकते हो. सो बेसिकली इसमें क्या करना है, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है जिसमें हम लोग को गलत आया था आंसर. इसमें तुम्हें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, और फिर वो यूनिटरी मेथड करना है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 21 ग्राम्स है तो हमारा जो भी वॉल्यूम आएगा उसका वेट कितना है. ठीक है, सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ. सो द streak of homework has begun.
कितना होमवर्क हो गया अभी तक? 1 2, उसमें अब काफी होमवर्क था, फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 तो अभी तक हो गए। चलो आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। द ट्रंक ऑफ अ ट्री इज सिलिंड्रिकल एंड इट्स सर्कमफरेंस इज 176। अगर सर्कमफरेंस दिया है तो उससे रेडियस मिल जाएगी। प्रेरित बोल रहे एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम में तो आने वाला है ना ये चैप्टर? हाँ, या ये याद दिलाना पड़ेगा मेरे को? प्रेरित तेरे लिए ही कर रहा हूं मैं। अगर तू ही बोलेगा कि एग्जाम चल रहा है और वो पे प्रैक्टिस नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम चल रहा है, तो देन जस्ट शट अप, ओके? ठीक है। सो ट्रंक ऑफ अ ट्री इज सिलिंड्रिकल एंड इट्स सर्कमफरेंस इज 176। देखो, अगर कोई भी सर्कमफरेंस हमें पता है उससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रंक इज 3 मीटर, लेंथ मतलब हाइट होती है, वो 3 मीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टिम्बर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रंक। बहुत इजी है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। इसमें तुम्हें हाइट ऑफ द ट्री पता है, दिस इज 3 मीटर, और सर्कमफरेंस से रेडियस मिल जाएगी तुम्हें। आर और एच पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हो तुम। वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल, कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। 14th क्वेश्चन, वाटर फ्लोज आउट थ्रू अ सर्कुलर पाइप, फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का क्वेश्चन आ गया है, रेट ऑफ फ्लो का क्वेश्चन। देखो, एक सर्कुलर पाइप है मतलब सिलिंड्रिकल पाइप है, ठीक है, इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। दिस इज द आइडिया, ठीक है। हुज इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, मतलब इंटरनल रेडियस कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। एंड द वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 6 मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड और रेट ऑफ फ्लो। प्रेरित प्लीज ऑन योर कैमरा। स्पीड और रेट ऑफ फ्लो कितना है? 6 मीटर्स पर सेकेंड इनटू द सिलिंड्रिकल टैंक। अच्छा, इसमें से पानी फ्लो होके किसमें इकट्ठा हो रहा है? द वाटर इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन अ सिलिंड्रिकल टैंक। लेट मी जस्ट ठीक है, एक सिलिंड्रिकल टैंक में ये पानी जा रहा है, तो मैं इसको नीचे बनाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा आर्टिस्टिक करना पड़ेगा अपने को। ये सिलिंड्रिकल टैंक में पानी भर रहा है, ठीक है, तुम्हें समझ तो आई गया होगा। ओके, सो और क्या बोला? द वाटर इज कलेक्टेड इन अ सिलिंड्रिकल वेसल, रेडियस ऑफ हुज बेस इज 60 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो सिलिंड्रिकल वेसल है उसकी रेडियस दी है 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हुज बेस। फाइंड द राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स। टाइम दिया है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में पानी कितनी हाइट तक आएगा ये हमें पूछा है। ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 14th वन इज योर क्लास वर्क, ठीक है। सो इंटरनल डायमीटर है, सॉरी, इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस 1 सेंटीमीटर। किसकी? पाइप की। ये है पाइप और ये है वेसल, दोनों सिलिंड्रिकल। अच्छा, इसमें से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है 6 मीटर्स पर सेकेंड है। ये वाटर जा रहा है सिलिंड्रिकल टैंक में। वाटर जिस सिलिंड्रिकल टैंक में कलेक्ट हो रहा है उसका बेस का रेडियस 60 है, और कितना वाटर उसमें एक्यूमुलेट होगा 30 मिनट्स में, उसकी हाइट क्या होगी वो हमें पूछी है। सो दिस इज द सिचुएशन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज convert this rate of flow which is 6 meters per second into centimeter per second। मीटर टू सेंटीमीटर इंटू 100 होता है, मतलब ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब पर सेकेंड 600 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम द पाइप इनटू सिलेंडर।
दिस इज द स्पीड। ठीक है, अच्छा। सो हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं, सिंस वी नो द रेडियस, इनर रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल पाइप जिसमें से पानी आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, therefore volume of water flowing out from the pipe per second. प्रेरित वेदांत, कीप योर कैम ऑन। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट फ्रॉम द पाइप पर सेकेंड कितना होगा, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई होगा 22/7, आर स्क्वेयर होगा 1 स्क्वेयर, एच होगा, देख मैंने क्या बोला था, हाइट पाइप मतलब पाइप की जो लेंथ है दैट विल बी टेकन फ्रॉम द स्पीड। स्पीड कितनी है, 600 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 600। ठीक है, सो 22 टाइम्स 600/7 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी एक सेकेंड में पाइप से फ्लो होके सिलिंड्रिकल वेसल में गिर रहा है। इतना पानी पाइप से फ्लो होके सिलिंड्रिकल वेसल में गिर रहा है पर सेकेंड, एक सेकेंड में। ठीक है, अच्छा अभी देखो हमें सिलिंड्रिकल वेसल को ऑब्जर्व करना है 30 मिनट्स तक। 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में कितना पानी उसमें एक्यूमुलेट होगा, सो यू हैव टू फाइंड दैट। Sir, into 3600. वॉल्यूम ऑफ वाटर accumulated in the cylindrical vessel, volume of water accumulated in the cylindrical vessel in 30 minutes is equal to 22/7 times 600, ठीक है, टाइम्स 30 मिनट्स मतलब कितनी सेकेंड्स होती है, 1800, because 1 hour is 3600 seconds, so 30 minutes means half an hour which is 1800 seconds। ठीक है, कितना पानी जमा हो रहा है सिलेंडर में 30 मिनट्स में, इतना 22/7। मैं जानबूझ के इसको कट नहीं कर रहा हूं, कट करने का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर विच इज एक्यूमुलेटेड इन 30 मिनट्स। अब ये जो सिलेंडर है उसकी रेडियस ऑफ बेस कितनी है, 60 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। हमें हाइट ऑफ वाटर ढूंढनी है, हो जाएगा ना, आराम से हो जाएगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। पाई आर स्क्वेयर एच, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर कितना है, 22/7 इंटू 600 इंटू 1800। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू आर स्क्वेयर। ये आर किसका आर है पता है, ये सिलिंड्रिकल वेसल का रेडियस दैट इज 60 का स्क्वायर, 60 स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ वाटर में नहीं पता है उसको एच ले लो। 22/7 दोनों साइड से कट जाएगा, सो 600 इंटू 1800 upon 3600 which is 60 square will give you h, so 1800 2s are and 2 300s are, therefore height of water कितना हो जाएगा, 300 centimeter in 30 minutes which is 3 meter। the height of water accumulated in the cylinder will be 3 meters, so please note it down। very nice question actually, very good question। सर हो गया। तुमको जल्दी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आई होप तुमने पूरा स्टेप वाइज अच्छे से लिखा है जैसे मैंने लिखा है।
when you come across such rate of flow वाले questions you have to be very very careful because अगर ये तुम्हारे स्कूल में पूछ लिया, ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते हैं 9th में, बट अगर आ गया किसी की स्कूल में, then it will be a trouble if you don't have proficiency with these kind of questions. So I hope you have written it properly. चलो ये हो गया तुम्हारा क्लास वर्क का क्वेश्चन फाइनल फॉर टुडे। देखते हैं अभी और होमवर्क क्या मैं दे सकता हूँ। प्रेरित कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा फर्स्ट डोज हो गया वैक्सीन का, अच्छी बात है। सेफ रहो फिर भी, नोबडी इज सेफ फ्रॉम कोविड, एवरीबडी इज गेटिंग इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने अभी किया, लेट्स से वेरी गुड। 15th क्वेश्चन सिमिलर है, रेट ऑफ फ्लो वाला है, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। 15th क्वेश्चन इज योर होमवर्क, रेट ऑफ फ्लो वाला है। Okay, so that's it. I'm not going further today. So today सर is 14th होमवर्क है क्या? 14th हमने किया ना अभी, we just did 14th। हाँ सर, सॉरी सर। देखो कितने होमवर्क है यहाँ पे, 4 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, 7, और यहाँ पे 2 हो गए, 9। 13 डे में से 9 क्वेश्चन है होमवर्क, और उससे पहले 13C था, इसमें हम लोग ने 5 क्वेश्चन यहाँ से होमवर्क किए, इसमें से मतलब टोटल 14 क्वेश्चन अभी तक होमवर्क में तुम्हें मिल चुके हैं। ठीक है, कल हम लोग एक काम करेंगे, ये सर जो कब तक सबमिट करना है? ये नेक्स्ट वीक करना है, अभी नहीं करना है, नेक्स्ट मंडे। हंस क्यों रहा है आदित्य? तू तभी भी टाइम पे नहीं करेगा, तभी भी मेरे को भीख मांगनी पड़ेगी ग्रुप में कि कर दो सबमिट, तब जाके तुम करते हो। तुम्हें कभी सामने से टाइम याद रहता है क्या मुझे होमवर्क सबमिट करना? कभी नहीं। तो छोड़ ही दो भाई, हंसो मत तुम। डोंट बी सॉरी, इट इज आई शुड बी सॉरी। एवरी टाइम एवरी वीक आई हैव टू डिमांड द होमवर्क। फिर पेरेंट्स को क्या लगता है पता है? कि हम लोग काम नहीं देते। पेरेंट्स को ये फॉल्ट लगता है कि हमारा गलती है, हम काम नहीं देते, इसलिए बच्चे फ्री बैठे हैं घर पे। उनको ये नहीं पता कि जब तक उनको पोक नहीं किया जाता तब तक ये काम करने बैठते नहीं है। तो गलती हमारी नहीं है, हम तो इनफ होमवर्क देते हैं कि तुम पूरा वीक उसको डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़ा 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 कर लो, लेकिन तुम एंड मोमेंट पे करने वाले बच्चे हो। प्रॉब्लम तुम्हारी तरफ से, ये कौन समझाएगा? 10 लोगों का नाम लेना पड़ता है मुझे, तब जाके वो लोग होमवर्क फिर फटाक से सबमिट करते हैं, एंड आई हेट दिस कंप्लीटली। होमवर्क तुम सबमिशन के पहले सबमिट कर दो ना, नहीं तो फिर कल का ही सबमिशन डेट देता हूं, फिर एक दिन में लोड ले लो पूरा। इट्स वेरी रॉन्ग यार, दिस इज यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। अच्छा लिसन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अभी हम स्किप करेंगे इसके, बिकॉज दे ऑल आर सच क्वेश्चन जो तुमने क्लास 10th में फेस करना है। ठीक है, सो दीज आर क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन, अभी इसको करके फायदा नहीं है। अभी हमारे कुछ पार्ट्स बचे हैं, दैट इज कोन। कोन का सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो हम लोग इसके ऊपर जाएंगे कल। कोन कैसे भी खत्म करेंगे हम लोग, वी आर गोइंग टू फिनिश अप विथ कोन टुमारो एनी हाउ। ओके, और फिर हमारे 2 पार्ट बचेंगे, दैट इज हेमिस्फीयर और स्फीयर, and we are done with this chapter. So I have deliberately left some part from cylinder, that is question number 16 to 20, but बाकी के क्वेश्चन होमवर्क है, तो ये वाला पार्ट मैं तुम्हें भेज रहा हूँ आज, और पहले वाला पार्ट ऑलरेडी है। प्लीज होमवर्क शुरू कर दो, रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चन करो, बहुत ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, कम ही है।
but at least try them, complete them as soon as possible. I don't have to beg you in the group every time कि homework submit करो.